the computer, Mazhar Zaidi Saab. He's doing very well and supporting every technical aspect of. Otherwise, it would have been very difficult for us to address 160 participants across the country who are just young lecturers who have just joined the university departments or colleges as young lecturers, assistant professors. I think this is the time now to start. Yes, sir. Please start. Many of your participants have joined by now. We can see 104 of them here. 104. So, very yes, good. So, and very good. Yes, in another 2-3 minutes, I'm sure. Very good. So, thank you very much, and very welcome all the participants who have joined in, or who have logged into this online program of the University Grants Commission, which is being conducted by the HRDC Human Resource Development Center of Aligarh Muslim University, which is faculty induction program. Relatively, this is a recent program which has been designed by the University Grants Commission, and this is very useful for young lecturers, for young assistant professors. Now, previously it was lecturer, reader, professor. Now the nomenclature is assistant professor, associate professor, and professor. In many countries, to distinguish the height of the professor, for instance, in Germany they write it full professor. So once a teacher reaches that stage of professor. So very welcome all the participants who have joined this program online from various parts of the country, faculty induction program. And this new education policy, which has been recently announced, 2020 education policy, national education policy, it is also focusing on strengthening the faculty, strengthening the teachers in higher education, because it is very rightly said that the quality in higher education cannot rise above the quality of its faculty. The quality in higher education cannot rise above the quality of its teachers. अगर हम टीचर हैं हायर एजुकेशन में, तो उच्च शिक्षा का जो गुणवत्ता है, जो एक्सीलेंस है, जो उसकी खूबी है, जो एक्सीलेंस है, क्वालिटी है, इट कैन नॉट गो अबव मी. इसका मतलब कि हम ही उसको निर्धारित करते हैं. द टीचर्स they determine the level of the quality and excellence of higher education. वो benchmark वही निर्धारित करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं. It's not only that they define the benchmark, then they determine the quality of excellence and goodness and quality in higher education. They have the capacity to take it further, to take it from stage to stage. Yesterday I had told you that there is a triangular issue, and the teacher must be conscious of all these three. On the one pinnacle is how to increase the enrollment ratio in higher education. Number of teachers, number of students. If there are more students, we need more infrastructure. We need more rooms, classrooms, more library facilities, lab facilities, everything. And if the number is rising, then there will be greater challenge to maintain the quality of excellence, quality and excellence in higher education. If the number is small, it's easy to maintain the quality. If the number is large, then it's very difficult to maintain the quality of education in higher education institutions. And then at the same time, along with quantity and quality, is the issue of having an egalitarian system of higher education, having a system which is ensuring equality, which is ensuring equal access to deprived sections of the society. Students coming from poorer background, students coming from neglected areas, rural areas, far-flung areas. तो वहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़के आ रहे हैं, उच्च शिक्षा को ज्वाइन कर रहे हैं, because higher education is not very cheap, is expensive. And remember, जो fee rate है ना, it is a type of price tag. तो जैसे आप बाजार में शॉपिंग में जाते हैं, if anything is priced very cheap, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, सोचेंगे कि 100 रुपए में क्या मिल जाएगा. तो उसी तरीके से अगर फी रेट बहुत कम रख दिया जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन जैसे कम दिखाई देगा. तो फी रेट is also an indication of the value of price tag is an indication of the value of the service of the commodity. तो इससे ये भी पता लगता है कि ये जो एजुकेशन है, if it is highly valued, if it is highly priced, if it is more valuable and more significant qualitative, then it will not be available cheap ordinarily.
तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर हेल्पिंग फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली those children, those students who are coming from poorer background, deprived sections of the society. So equality, egalitarian system of higher education. तो कल हमने आपको बताया था ये तीन चीजें हैं जो बहुत अहम है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड इक्वालिटी, ये तीनों बहुत अहम है। इसके साथ ही हमने जो पूरा इकोसिस्टम है वो उसके बारे में हमने आपसे बात की थी। I explained to you that we are now having about 1,000 universities in the country. We are now having about 40,000 colleges, 39,000, some few hundred, which is about 40,000 colleges. Large number of colleges. Many colleges are single subject colleges, B.Ed colleges, law colleges. उनको धीरे धीरे phase out करने का स्कीम चल रहा है। जो National Policy on Education is trying, has the vision to phase out, or they should develop themselves as multidisciplinary colleges. So, and along with the number of students, gross enrollment ratio, the net enrollment ratio, then diversity of the student population, class management, instructional technology, all these things they did come under discussion yesterday. And I hope by now the number must be nearing 160 as the enrolled number is of the participants, young lecturers who have just joined this program. So let us begin with today's speech, today's presentation, today's lecture, which is on higher education goals. What are the goals of higher education? Objectives of higher education. ये क्यों दिया जा रहा है? Why in all countries of the world there is primary education, then there is secondary education, then there is higher education. ये जो stages हैं education की, and these stages of education are related with the age group of the student. These are related with the age of the student, boys and girls. Up to 11 year is primary education. From 11 to 14 year is upper primary education, class 6 to 8. And from 14 to 18 is secondary education, 9, 10 and 11, 12. And from 18 to 23 is the age group of higher education. So ये different age groups में different levels of education तय के, and this is more or less थोड़ा बहुत फर्क से पूरी दुनिया में ऐसा ही सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक आध साल का आगे पीछे रहता है, but then by and large this is the system which is followed everywhere in the world. Primary education 10-11 साल तक, फिर उसके बाद में अपर प्राइमरी एजुकेशन 14 साल तक, फिर सेकेंडरी एजुकेशन 4 साल का लगभग 14 से 18 साल, फिर हायर एजुकेशन 18 to 23 ईयर. सो अबाउट 1/4 of the life, अगर 100 साल का लाइफ मान के चले, about 1/4 of the life goes in the pursuit of knowledge. And this pursuit of knowledge, this is not only for this age of life, this is for the whole life. This is very important, and perhaps this is the most important goal of education, that it is not only helping the student to enjoy life at this stage and to get educated, it gives you, it fills you with that ability and capacity that you enjoy the rest of your life. 1948-49 में, immediately after the independence of the country, there was one University Education Commission. राष्ट्रपति जो बाद में बने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, he was the chairman of that. और उस वक्त वो he was professor of Oriental Religions and Ethics at Oxford University. 1930 after till the independence of the country, उसके बाद तक he was professor at Oxford University. अब देखिए कितना बड़ा स्कॉलर रहे, और तभी तो उनके जन्मदिन को हम लोग टीचर्स डे की हैसियत से टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन. ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का जो रिपोर्ट है 1948-49 का, इट ओपन्स विद द श्लोका ऑफ संस्कृत इन द बिगिनिंग. सबसे पहले एक श्लोक उसमें लिखा हुआ, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है. क्या अर्थ है उसका समझा रहे हैं आपको. इट सेज दैट द टोटल एजुकेशन दैट ए पर्सन रिसीव्स, टोटल जो उसका शिक्षा प्राप्त होती है उसको, 1/4 of it is given by the teachers. जो अध्यापक हैं, गुरु हैं, उनसे पूरी शिक्षा का 1/4 हिस्सा 25% is received through teachers. तो हमारा जो योगदान है वो पहला 25% के बराबर है. फिर उसमें दूसरे श्लोक में उसमें उसी श्लोक में कहा जा रहा है, and the next 25%, दूसरा जो चौथा हिस्सा है, that the students get through reading.
रीडिंग मटेरियल पढ़ करके, वो अध्ययन करके, स्वाध्ययन करके, स्वयं पढ़ करके प्राप्त करते हैं वो ज्ञान, दूसरा 25%। द थर्ड 25% दे गेट थ्रू इंटरैक्शन एमंग देमसेल्व्स, आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके, इंटरैक्ट करके, सेमिनार, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस। एंड द लास्ट 25% श्लोक में लिखा हुआ है लाइफ इटसेल्फ टीचेस यू, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव कहते हैं। तो पहला 25% फ्रॉम टीचर्स, दूसरा 25% फ्रॉम रीडिंग, तीसरा 25% फ्रॉम डिस्कशन, इंटरैक्शन, और चौथा 25% एक्सपीरियंस। लाइफ इटसेल्फ टीचेस यू, इसका मतलब कि जब तक अनुभव नहीं आगे बढ़ेगा, जब तक वो पूर्णता जिसे ज्ञान की कहते हैं ना, परफेक्शन ऑफ नॉलेज, उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, अभी आप यंग टीचर हैं, 1-2 साल का आपका अनुभव है, 5 साल का अनुभव, जैसे जैसे आपका ये पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ते जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगा, आपका स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, एक्सपीरियंस का परिभाषा क्या है? एक्सपीरियंस का परिभाषा ये है, एक्सपीरियंस इज ए सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय टाइम। बहुत बहुत जबरदस्त परिभाषा, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। एक्सपीरियंस इज ए सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय टाइम। जैसे आपने लिखा 10 साल का अनुभव, इसका मतलब 10 साल आपने गुजारा होगा। जैसे आपने लिखा 40 ईयर एक्सपीरियंस एज टीचर, इसका मतलब 40 साल आपने गुजारे होंगे, तब आप लिख सकते हैं 40 ईयर एक्सपीरियंस एज टीचर। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अनुभव बगैर उतना समय गुजारे आप लिख नहीं सकते हैं, आप हासिल नहीं कर सकते हैं, आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? एक्सपीरियंस इज ए सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय टाइम। डिग्री इज ए सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन। आप अलीगढ़ में पढ़ो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको BA दे देगा, MA, MSc, PhD सब दे देगा, लेकिन आपको उसके बाद में लिखना होगा कि 10 ईयर एक्सपीरियंस एज टीचर, 20 ईयर एक्सपीरियंस एज टीचर, 10 ईयर एज प्रोफेसर लिखना। अगर देन यू हैव टू स्पेंड दोज मेनी ईयर्स, वो गुजारना पड़ेगा आपको। इसलिए परिभाषा में बोला जाता है एक्सपीरियंस इज ए सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस इज ए सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय टाइम। समय स्वयं आपको प्रदान करता है उतना समय। तो इसलिए अब देखिए, अब श्लोक को कनेक्ट करिए ना इस बात से। श्लोक में क्या कहा जा रहा है? श्लोक में ये कहा जा रहा है कि आखिरी जो 25% ज्ञान का है, वो अनुभव आपको सिखाता है। इसका मतलब जैसे जैसे ईयर्स आपके बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका जो टोटल स्टॉक ऑफ नॉलेज है दैट यू कैरी विद यू, वो बढ़ता जाता है। अब ये चला जाए, ये देखा जाए कि जो गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन है वो क्या है। गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इसका उद्देश्य है एजुकेटिंग द यूथ्स टू परफॉर्म इंटेलिजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली इन एवरी एक्टिविटी इन लाइफ। हायर एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि जो हम युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, वो समाज में जितने क्रियाकलाप हैं, वो हर क्रियाकलाप को बहुत इंटेलिजेंटली परफॉर्म करे और बहुत रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करे। देख के लगे कि ये जो काम कर रहा है आदमी, ये उच्च शिक्षा प्राप्त आदमी है, ये बहुत दिमाग से ये काम कर रहा है, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से ये काम कर रहा है, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये काम कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, इसमें कोई डिग्री विग्री का बात नहीं यार। पहला गोल क्या, हमेशा याद रखिए, यू आर यंग टीचर, अपने बच्चों को बताइए कि हमारा पहला काम ये है कि टू प्रिपेयर यू सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी इन द सोसाइटी इंटेलिजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से देखने में लगे कि ये अनपढ़ आदमी नहीं हो सकता, ये अनस्किल्ड नहीं हो सकता, ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है ये जो काम कर रहा है। टू परफॉर्म योर एक्टिविटी इंटेलिजेंटली, और दूसरा लफ्ज क्या आ रहा है? रिस्पॉन्सिबली। नॉट ओनली इंटेलिजेंटली बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये पहला बड़ा उद्देश्य है दैट द यूनिवर्सिटी सिस्टम इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी इन द सोसाइटी इंटेलिजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। दूसरा जो बड़ा एम है इसका, टू प्रमोट ओरिजिनल थिंकिंग एंड रिसर्च, इनोवेटिव थिंकिंग एंड रिसर्च। गौर फिक्र करने पर ये मजबूर करता है। स्कूल एजुकेशन तक क्या होता है, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में फर्क क्या, बुनियादी फर्क क्या है? इंटर तक जो बच्चे हैं, जो लिखा हुआ है वो पढ़ा दिया जाता है, जो लिखा हुआ है वो समझा दिया जाता है,
जो लिखा हुआ है उसकी व्याख्या कर दी जाती है। इसलिए वहां पर पाठ्य पुस्तक कहलाता है कि ये पाठ्य पुस्तक है और ये संदर्भ ग्रंथ है, रेफरेंस बुक है। तो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आते हैं, गद्य आएगा, पद्य आएगा, पोट्री होगी, प्रोज होगा, एक्सप्लेन करने को होगा, जीवन चरित्र लिखने को, जो लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन किया जाए। उच्च शिक्षा में जब वही बच्चा पहुंचता है तो उसको सोचने पर उसको आमादा किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। थिंक योरसेल्फ। आप स्वयं चिंतन और मनन कीजिए। ये दूसरा उद्देश्य, टू मोटिवेट स्टूडेंट टू थिंक फ्रीली, मोटिवेट स्टूडेंट टू गो फॉर रिसर्च, जो नया अन्वेषण करिए, नया रिसर्च करिए, एंड टू इंगेज स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। क्या बात कही जा रही है, इंगेज स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि जो ज्ञान की जो सीमाएं हैं उनको बढ़ा दे, उनको लाग जाए, वो उनको और विस्तारित कर दे। ये बड़ा उद्देश्य है उच्च शिक्षा का, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू थिंक इन एन इनोवेटिव मैनर, इन ए रिसर्च मैनर, रिसर्च को प्रमोट करना, अन्वेषण को प्रमोट करना, नई चीज की खोज करना। सिर्फ जो लिखा है उस पर इक्तफा न कर ले, सिर्फ जो लिखा है उस पर समझ करके बैठ न जाए, बल्कि जो फैकल्टी है, जो मेंटल फैकल्टी है, उसमें एनालिटिकल पावर को बढ़ाना, उसका जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना। कल हमने आपसे बात किया था कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना जरूरी होगा, इसलिए कि जब आप पढ़ेंगे तो उच्च शिक्षा में जब आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड रिएक्ट करता है। अब आपके पास इतनी तालीम आ चुकी है सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंच करके, दैट योर माइंड स्टार्ट्स रिएक्टिंग व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप जो हमारा जो गिवन नॉलेज है उस गिवन नॉलेज को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू गो फॉर रिसर्च, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू हैव इनोवेटिव थिंकिंग। अब इसमें देखिए ये एफआईपी में ये क्यों बताया, एफआईपी में आप सभी लोग जो 160 हमारे साथ में टीचर जुड़े हुए हैं, आप सभी पता नहीं कौन कौन से विषय पढ़ा रहे हैं। आप कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है, कोई अरबी पढ़ा रहा है, कोई अलग अलग, लेकिन ये जो बातें इसमें की जा रही हैं इसका विषय से इतना कोई सीधा संबंध नहीं है, ये जनरल चीजें हैं। और एफआईपी में ऐसी बातें आपको कंटेंट मिलेगा जिसमें विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी टीचर। तो पहला काम ये हुआ, पहला गोल ये है कि आप जो हम यूथ हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं so that they behave in the society and they perform every activity in the society very intelligently and very responsibly. और दूसरा इसका बड़ा गोल ये है to motivate students to go for innovative thinking, नए तरीके से सोचने, नए तरीके का सोचने का काम करे। वो मोटिवेट करते हैं उसको, और गौर करिए, इसके ऊपर फिक्र करिए, इसके ऊपर में रिसर्च करने का काम करिए, और जो ज्ञान है, जो सीमाएं हैं उसको और आगे बढ़ाइए। ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं they are filled with new energy। जो माइंड है, जो उसका जो ग्रोथ होता है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद में फिर रुक जाता है, फिर उसी माइंड पर वो आगे काम करता रहता है। तो नए खासतौर से जो लैब में काम हो रहा है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, फिजिकल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा बड़ा काम है, दूसरा बड़ा गोल है कि हम जो हमारी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मोटिवेट करें फॉर इनोवेटिव थिंकिंग, फॉर न्यू थिंकिंग, for logical thinking, for reason, for research, for extending the frontiers of knowledge। इनको आगे बढ़ाएं। वो जो भी विषय में पढ़ रहे हैं उस विषय को वो आगे बढ़ाएं, नया एक्सपेरिमेंट करें, नए अनुभव करें, नया सर्वे करें, नया सर्वेक्षण करें, नया अध्ययन करें। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे वोकेशंस हैं। उन प्रोफेशंस और वोकेशंस के वो बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेकर के आते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का काम यह है कि उन प्रोफेशंस की तालीम को आगे बढ़ा देना, उन वोकेशंस की तालीम को आगे बढ़ा देना। इसलिए मैनेजमेंट में हायर एजुकेशन है, इंजीनियरिंग में हायर एजुकेशन है, आईआईटीज खोल दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट खोल दिए गए हैं, और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट खोल दिए गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट खोल दिए गए हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को? मतलब डिफरेंट वोकेशंस, डिफरेंट प्रोफेशंस, इनके जो एक्सीलेंस लेवल है, इनका जो हायर लेवल है, जिसके लिए जनरल हायर एजुकेशन जरूरी है, तो टू प्रिपेयर एंड टू एडवांस those students who have already a grounding at the higher secondary level in different skills, different professions, in different vocations, higher education में पहुंच करके उनको हम उसी लाइन में और आगे ले जाते हैं।
अगर वो कॉमर्स साइड से आया है तो मैनेजमेंट MBA करके जाएगा, फिर उसमें PhD करके जाएगा, फिर होटल मैनेजमेंट में करेगा, टूरिज्म में करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेगा, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल बिजनेस में, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कॉमर्स। अगर वो साइंस बैकग्राउंड से आया है तो फिर फिजिकल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, फिर जैसे केमिस्ट्री में आया है, फिजिक्स में आया तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दैट सब्जेक्ट, वो हायर एजुकेशन उनकी नाइस्टीज में ले जाए, स्पेशलाइजेशन विद इन स्पेशलाइजेशन उस लाइन में ले जाता है उसको। और ये बहुत अहम है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी कैरियर वाले स्टूडेंट्स हैं, वोकेशन वाले स्टूडेंट हैं, उनको किस तरीके से ये हायर एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन बोला जाता है। एक तो जनरल हायर एजुकेशन और एक स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन। फिर इसमें आता है कि परफॉर्मिंग इनफॉर्मल एजुकेशनल सर्विसेज, परफॉर्मिंग इनफॉर्मल एजुकेशनल सर्विसेज फॉर द सोसाइटी इन जनरल, फॉर द कम्युनिटी एट लार्ज। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर लाइट हाउसेस। फिर से सुनिए, ये जो आपका कॉलेज है, इट इज ए लाइट हाउस फॉर द सोसाइटी। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, आप कहिए आई एम वर्किंग इन ए लाइट हाउस, नॉट पावर हाउस। बिजली नहीं बनती, आप प्रकाश देते हैं, ज्ञान प्रकाश है ना। हाँ, नॉलेज इज लाइट। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलुम मिस्कातिक मसलुम मिस्कातिक मसनूर ही का मिस्काति फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी ज़ुजाजा। वो पूरी आयत है। ब्रह्म जो है वो प्रकाश है, विद्या जो है वो प्रकाश। सो वी आर प्रमोटर्स ऑफ दैट लाइट, ज्ञान, नूर, ज्योति, प्रकाश, रोशनी। ये यूनिवर्सिटीज जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, दे आर लाइट हाउसेस फॉर द होल कम्युनिटी, फॉर द होल सोसाइटी। तो अब ये चारों चीजें देखिए कितनी अहम है, ये गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन है। और आपको सुन करके आपको लगेगा कि आप कितने अहम पोजीशन पे पहुंच गए हैं, दैट यू आर वर्किंग in a organization which is spreading noor, which is spreading jyoti, which is spreading the light of knowledge। प्रकाश पूरी दुनिया में फैला रहा है। और 3 लड़ाइयां शुरू से चल रही हैं, अंधकार को प्रकाश में बदलना, बीमारी को स्वास्थ्य में बदलना और अज्ञानता को ज्ञान में बदलना। ये 3 लड़ाइयां आदिकाल से चली आ रही हैं। आप उसी का अंग बने हुए हैं। बहुत मुबारकबाद आपको दैट यू हैव ज्वाइंड एज टीचर। एंड ज्वाइनिंग एज टीचर का बुनियादी बात यह है, कल हमने आपसे जिक्र किया था, फिर रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, आज सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा। हमारा एक पुराने हम जब यहाँ लखनऊ छोड़ के बरेली गए थे वाइस चांसलर 2012 में, तो उस वक्त बाल मुकुंद वर्मा उसका नाम था, हम MA में पढ़ाते थे उसको, तो वो बड़ा अफसोस कर रहा था कि आप चले जाएंगे तो हम लोग को आपका टीचिंग नहीं मिलेगी। तो हमने कहा नहीं भाई, और टीचर हैं, सब लोग पढ़ाएंगे। आज उसका हमारे पास मैसेज आया कि सर आई हैव बीन सिलेक्टेड एज ए लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स इन ए गवर्नमेंट कॉलेज बाय द कमीशन, जो यहाँ पे इलाहाबाद में प्रयागराज में कमीशन है, वो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का, उसके जरिए से वो सिलेक्ट हो गया है वहां पर। तो हमने उनको कहा, पहले भी हम आपसे भी कह रहे हैं कि यू हैव एज इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए स्टूडेंट, यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए स्टूडेंट। आप स्टूडेंट बने रहिएगा, तब तो आप एंजॉय करेंगे बीइंग ए टीचर। अगर आप छोड़ देंगे ये पढ़ने का काम तो आप एंजॉय नहीं करेंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब हमको डॉक्टर फाइजा की कॉल आती है, फोन आता है, मैसेज करती हैं, किसी और HRDC से पूरे हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला है, दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने का मौका मिला है, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में भी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा जो हमको फीलिंग होती है, सबसे अच्छा जो हमको खुशी होती है, व्हेन आई रिसीव सम इनविटेशन फॉर गिविंग सम लेक्चर। ऐसे क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, फैकल्टी बोर्ड में है, सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं, कमीशन में जाते हैं, और बहुत सारे एंगेजमेंट रहते हैं। लेकिन सबसे खुशी उस वक्त होती है जब हमको कोई ऐसा इनविटेशन मिलता है, मैसेज आया, ईमेल है, फोन है कि आपको एक लेक्चर देना, तो हमें बहुत खुशी। इसका मतलब हमको थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। और जब आप पढ़ के जाएंगे ना, तब आपको मौका रहेगा उस जो आपने पढ़ा है उसको दिखाने का मौका रहेगा, उसको सुनाने का मौका रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सुनाएंगे क्या? आपको पुराना वाला नॉलेज को सुनाने में आपको नहीं मजा आएगा। एंड रिमेंबर, अनलेस यू एंजॉय, योर स्टूडेंट्स विल नॉट एंजॉय। बहुत जरूरी है कि जब आप एज टीचर बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन बोल रहे हो, चाहे क्लास में बोल रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो बहुत जरूरी है दैट यू ऐड समथिंग न्यू टू इट। अब जैसे क्या है,
जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो ज्ञान है, टोटल स्टॉक ऑफ नॉलेज बहुत इकट्ठा होता जाता है। बहुत मुमकिन है कि आपको क्लास लेने के लिए कोई नया चीज पढ़ने की जरूरत ना रहे। आपके पास इतना नॉलेज है कि आप उसी को बता दें तो बहुत काफी है विद्यार्थियों के लिए, उनको तो कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप उस दिन कुछ नया पढ़ के नहीं गए हैं, उसी विषय पे, उसी टॉपिक पे, अगर आप कुछ नया पढ़ के नहीं गए हैं, तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाने में, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मोटिवेशन अंदर से कम हो जाए। जैसे आप रिपीट करना शुरू करेंगे, आपका अंदर से मोटिवेशन कम हो जाए। एंड इफ दैट मोटिवेशन इज रिड्यूस्ड, देन यू सीज टू बी ए गुड टीचर। रिमेंबर, you must be a motivated person to be a good teacher, and that motivation comes from new teaching, new reading, new material that you take with you. ये अंदर से एक खुशी होती है, हौसला रहता है ना। जैसे दुकानदार है, कोई नया सामान अपने दुकान में लाके रखता है तो बाहर उसको लगा देता है, शो पीस के रूप में लगा देता है, जिससे कोई ग्राहक आए देखे भाई ये लगता है नया सामान आया है। तो हम लोगों का भी काम ही है, जब क्लास में जाएं तो जो नया नॉलेज है हमारा, वो हमको महसूस हो, बच्चों को महसूस हो कि ये जो सर बता रहे हैं। और अब तो ये काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप और करिए, एक वो जमाना था ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, 14वीं सदी से पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो हाथ से लिखा जाता था। एक वो भी जमाना था जब हाथ से भी नहीं लिखा जाता था। एक वो भी जमाना था जब लिपि आई नहीं थी। और मैजिक ऑफ राइटिंग था, मतलब जिसको लिखना आ जाए वो एक मैजिक के बराबर। जैसे आज कंप्यूटर का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज आई है, उस वक्त वैसे था। अगर आप लिखना जानते हैं, जैसे आप जादू करना जानते हैं, ये चीज आपने ऐसे हाथ चला दिया, दूसरा आदमी जो उसको पढ़ सकता है उसने देख लिया, समझ लिया। तो ये बाकी लोगों के लिए जो अनपढ़ थे उनके लिए जादू था कि आपने ऐसा कुछ किया, दूसरा आदमी समझ गया कि आपने क्या किया। ये जादू था उस जमाने में। तो एक वो जमाना था जब राइटिंग भी नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था। तब क्या था? तब वो श्लोक याद करिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एवरीथिंग फ्लोइंग फ्रॉम द माइंड ऑफ द टीचर वाज द अल्टीमेट वर्ड। बिल्कुल बादशाह थे, सम्राट था, जो बोल दिया वो हो गया, जो बोल दिया वही सही है। टीचर ने जो कह दिया, इसलिए कि उसको चैलेंज करने का कोई दूसरा तरीका था ही नहीं। आज देखिए हम आपके सामने बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसको सुना जा सकता है। और ये हमारे जो मजहर जैदी साहब हैं, ये तो इसको बना करके उसमें वेबसाइट पे डाल देंगे, गूगल पे डाल देंगे, और कोई भी कभी भी देख सकता है। तो उसमें तो पकड़ में आ जाएगा ना कि देखिए डॉक्टर मुसम्मिल बोल रहे थे, उन्होंने क्या क्या कहा इसमें। It can be reheard, it can be re-listened, it can be re-seen, it can be reviewed. चैलेंजिंग है, उस वक्त नहीं था, रिवाइंड नहीं हो सकता, जो हो गया हो गया। तो टीचर के लिए तो बड़ा अच्छा था भाई, जो बोल दे वो बोल दे। किताब भी नहीं थी, कुछ नहीं था। अब आप जिस एज में आए हैं, अब आकर के आप टीचर बने हैं, आप सोचिए कितना चैलेंजिंग था। हम जब टीचर बने तब भी चैलेंजिंग नहीं था, तब कंप्यूटर नहीं था, टेलीविजन बहुत रेयर था उस जमाने में। 74-75 में हम टीचर बन गए थे, रेडियो सिर्फ चला हुआ था। आज कितना मुश्किल काम है, कितना वेबसाइट है। जब आप लेक्चर दे रहे हैं उसी वक्त वो बच्चा अपना स्मार्टफोन में वो टाइप करेगा और देख लेगा आप जिस विषय पर बोल रहे हैं वो विषय आप ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं ठीक। आपको टीचर की भूमिका को हर जगह साबित करना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है आप उससे इतर कुछ बोल रहे हैं, आप उससे आगे कुछ बात बता रहे हैं, आप उसको समझाने का कोई अनोखा काम कर रहे हैं जो उस टेक्स्ट में नहीं मिल सकता, जो तुमने गूगल में ढूंढ लिया अभी। तो चैलेंजिंग काम है ना, बहुत चैलेंजिंग काम है। और ये चैलेंजिंग काम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर रहे हैं। दे आर, चौथा बड़ा फंक्शन है, दे आर द लाइट हाउसेस। They are the lighthouses and performing informal education services for the whole society, for the whole community. तो ये चार बड़े फंक्शंस हैं। हम जो यूथ्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं so that they perform every activity intelligently and very responsibly in the society. दूसरा चीज, we prepare students for innovative thinking, for research, for extending the frontiers of knowledge.
तीसरा चीज, वी ट्रेन, वी कैरी आउट फर्दर प्रोफेशनल एजुकेशन, technical education, vocational education. We sharpen those abilities which the student has joined us through higher secondary level of education in different streams of vocation, different streams of profession. और चौथी चीज, we are like lighthouses. We are not only for students, we are not only for the classroom, closed classroom teaching, we are the lighthouses for the whole community. We are performing that informal service of education to the whole society, to the whole community. इसीलिए जिस शहर में यूनिवर्सिटी होती है उस पूरे शहर को नाज होता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में है, तो ऑक्सफोर्ड टाउन इज नोन एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाउन. द होल टाउन, पूरे शहर को फख्र होता है, गर्व होता है that it is ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाउन. द होल टाउन इज नोन एज ऑक्सफोर्ड. और वहाँ ऑक्सफोर्ड तो छोटा शहर है. जिस समय हम गए थे 94-95 में, उसके बाद भी और अभी भी बहुत ज्यादा आबादी नहीं है. तो आधी आबादी तो एकेडमिक पॉपुलेशन है, उसको गाउन कहते हैं. आधी आबादी सिविलियन है, उसको टाउन कहते हैं. द टाउन एंड द गाउन. समर में जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, जुलाई अगस्त के महीने में, जून इज द मंथ ऑफ एग्जामिनेशन. जुलाई अगस्त में जब यूनिवर्सिटी बंद रहती है, सितंबर में बंद रहती है, अक्टूबर में फिर खुलती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलती है. तो जो समर के जो महीने होते हैं जिसमें सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये चीजें होती हैं, तो उसमें सब टीचर स्टूडेंट्स, ज्यादातर द सिटी इज डिजर्टेड. तो कहते हैं कि व्हेन द गाउन इज इन रिसेशन, द टाउन इज डिजर्टेड. द टाउन एंड द गाउन. जैसे आप अलीगढ़ शहर में रह रहे हैं, तो अलीगढ़ शहर वालों को बड़ा फख्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनके शहर में है. बनारस में रह रहे हैं तो BHU आपके शहर में है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी आपके शहर में है. तो ये लाइट हाउस के ये जो फख्र होता है, तो कोई वजह तो होगी ना. ऐसा तो नहीं है कि हमको ऐसे ही कि बिला वजह कोई फख्र हो रहा है. इसलिए कि दे आर द लाइट हाउसेस फॉर द होल कम्युनिटी, फॉर द होल सोसाइटी. इसलिए जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी न्यूज़ होती है, वहाँ की जो खबरें होती हैं, वो जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का वहाँ का जो लोकल अखबार है, वहाँ बहुत डिटेल में कवर की जाएगी वो खबरें. अलीगढ़ की खबरें जो वहाँ का अखबार है, वहाँ बहुत डिटेल में कवर की जाएंगी वहाँ पर. तो वी आर लाइक लाइट हाउसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में एक चीज ये भी है कि यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, दे प्रिपेयर सिटीजनरीज. They prepare citizenry so that they perform every function, every activity personally to the most satisfying extent and socially to the most useful extent. हम ऐसे यूथ को तैयार कर रहे हैं. We are preparing boys and girls so that they can take up every activity to their personal satisfaction and to the usefulness of the society. ये बड़ा उद्देश्य है. ये कैथरीन फॉस्ट नाम की एक महिला थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली प्रेसिडेंट बनी. उसके पहले कोई महिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट नहीं थी. वहाँ वो एक कॉरपोरेशन है, तो जैसे वाइस चांसलर होता है ना, इस तरीके का वहाँ पूरे कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कहलाता है. तो पहली जो महिला प्रेसिडेंट थी कैथरीन फॉस्ट, उनका एक पूरा बुक है वो गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन. उसमें उन्होंने लिखा कि हम बॉयज और गर्ल्स को इसलिए तैयार करते हैं सो दैट they are able to perform every activity to the most satisfying extent, personally most satisfying and socially most useful. अपने लिए अगर आप शिक्षित हैं तो आप कोशिश करेंगे ऐसी ओपनिंग में, ऐसी जगह जाएं, ऐसे जॉब में जाएं, ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहां पर आपको बहुत संतोष मिले, बहुत अच्छा लगे, आप बहुत एंजॉय करें, आपको बहुत मजा आए आपको वो काम करने. You must enjoy the profession. कभी कभी enjoyment अगर नहीं होता है तो क्या full जो talent है, full जो innate abilities हैं, वो they do not get expression. वो प्रस्फुटित नहीं होती हैं, वो प्रकट नहीं होती हैं, उनका इजहार नहीं होता है. तो बहुत जरूरी है कि आप ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहां पर आपके अंदर समझते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उस प्रोफेशन में जाएं, अगर आप इंडस्ट्रियली इनोवेटिव हैं तो उस लाइन में जाएं, अगर आप इंजीनियरिंग बेंट ऑफ माइंड के हैं तो उस लाइन में जाएं, अगर आप टीचिंग कैरियर में पढ़ने पढ़ाने में आपको बहुत मन लगता है तो आप इस लाइन में आए जिसमें आप आए हैं. बहुत मुबारकबाद आपको. तो ये बहुत अहम है. और एक और चीज है जो इसके लिए जो हाईएस्ट गोल है उच्च शिक्षा का, वो ये कि तमाम सारी जो हमारे पास में चीजें हैं वो एक बड़ा उद्देश्य ये है
यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूट का, जिसको हम कहते हैं परसूट ऑफ विजडम, restless effort, tireless effort, continuous effort for pursuit of wisdom, knowledge and wisdom, pursuit of ultimate truth. ये हर यूनिवर्सिटी का बड़ा काम है, जो हम विजडम को तलाश करें, हम सच्चाई को तलाश करें. अल्टीमेट ट्रुथ, फाइंडिंग आउट अल्टीमेट ट्रुथ इज द अल्टीमेट एम ऑफ यूनिवर्सिटीज. इसलिए जब बड़ा कोई प्रोग्राम होता है किसी यूनिवर्सिटी में, दीक्षांत समारोह जैसी कोई चीज होती है जिसमें डिग्रीज अवार्ड की जाती हैं, सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाते हैं, ऐसे ही एक बड़े समारोह में एक बड़े प्रोग्राम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है 1887 में कायम हुई, और इसी सितंबर के महीने में, जिस महीने में आपका कार्यक्रम चल रहा है, और जिस दिन ये इसका इनॉग्रेशन हुआ 23 तारीख को आपका 23 सितंबर FIP was inaugurated in Aligarh Muslim University HRDC. 23rd or 24th is also the birthday of Allahabad University 1887. उसका कन्वोकेशन 47-49 में उसका कन्वोकेशन जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज एड्रेसिंग एंड ही सेड यूनिवर्सिटीज स्टैंड फॉर. देखिए अब उन जो अभी हमने बात की उनको ध्यान में रखिए, एंड सी दिस कोट, कोठारी कमीशन ने इसको उद्धृत किया, बहुत सी जगहों पर इसको उद्धृत किया गया है. यूनिवर्सिटीज का माने सारी इंस्टीट्यूशंस इसमें मिला दीजिए, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स. यूनिवर्सिटीज स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म, for tolerance, for reason, for adventure, ideas, and for ultimate search of truth and wisdom. ये जो अब कंप्लीट बात हुई, हमने एक एक करके आपको गिनाया. अब ये जो कंप्लीट बात हुई, एक सेंटेंस में बात आई, आपसे कोई सवाल करे, व्हाट इज द एम ऑफ योर कॉलेज, व्हाट इज द गोल ऑफ योर कॉलेज, आप किस लिए हैं, किस लिए अपॉइंट किए गए हैं, आपका विश्वविद्यालय का क्या उद्देश्य है, एक सेंटेंस में जवाब दीजिए. वी स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म. हम मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, हम इंसानियत की कदरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, हम चारित्रिक मूल्यों का निर्माण करने के लिए. बहुत बड़ी बात है. हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं जिसमें हर एक नागरिक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में काम करे, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करे, मानवता के लिए काम करे. यूनिवर्सिटीज स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस. टॉलरेंस चूंकि डाइवर्सिटी है ना, हमने कल भी बात की थी, आज हमने शुरू में बात की कि देयर इज डाइवर्सिटी of students, diversity of teachers, diversity of subjects, diversity of regions, diversity of religion, diversity of caste, customs, traditions, rituals. बहुत सारी चीजों में डाइवर्सिटी है. पूरे गुलशन में हर रंग के फूल खिले हुए हैं. तो उसकी इज्जत करना, उसको रिस्पेक्ट करना. और अब तो जो रिसर्च जर्नल्स में आप आर्टिकल भेजते हैं, तो जो टॉप जर्नल्स हैं पूरी दुनिया के, हम लोगों के पास उसका आते हैं आर्टिकल रिव्यू करने के लिए कि इसको छापने लायक है कि नहीं है. उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि ऐसी कोई चीज तो इसमें नहीं है विच गोज अगेंस्ट एनी रिलीजन और एनी कल्चर और एनी एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. उसमें लिखा रहता है. तो उसमें आपको कहना पड़ता है कि मॉरल राइट्स हैव बीन असर्टेड, moral rights, human rights have been asserted, have been used. मतलब ये कि आपने उसमें इनका कहीं उल्लंघन नहीं किया है. ये इतना अहम है. वो अहम इसलिए है क्योंकि हर आदमी को हक है अपनी चीज का पालन करने का. अगर हम हिंदी में बात करना चाहते हैं, माय हिंदी लैंग्वेज शुड बी रिस्पेक्टेड. हम अरबी में बात करना चाहते हैं, इट शुड बी रिस्पेक्टेड. हम संस्कृत में बात करना चाहते हैं, इट शुड बी रिस्पेक्टेड. हम अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, इट शुड बी रिस्पेक्टेड. अब देखिए, फिर से देखिए, यूनिवर्सिटीज स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस. ये जो टॉलरेंस है वो यही है कि हम आपको कोई चीज पसंद है तो आपके लिए अच्छा है, हमको कोई चीज पसंद तो आप उसके लिए एक सहिष्णुता पैदा करना, टॉलरेंस पैदा करना. इट स्टैंड फॉर रीजन. रीजन का मतलब वही जो अभी हमने बताया, रिसर्च, टेकिंग द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अहेड. ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाना, जहां तक ज्ञान है उससे और आगे ले जाना, सितारों से आगे जहां और भी हैं. वो कहते हैं ना कि मिले जो जर्रे तो तारों की आरजू की है, सितारे पाए तो फिर माहताब मांगा है, मिला जो माह तो जागी है आरजुए सहर, सहर मिली तो नया आफ्ताब मांगा है. एक इनकलाब मुसलसल है तालीम का सफर, कदम कदम पे नया इनकलाब मांगा है. ये है टेकिंग द फ्रंटियर्स ऑफ education to higher limits,
to higher stages. कि अगर छोटी चीज मिलती है तो फिर बड़ी चीज की कल्पना करते हैं। मिले जो जर्रे तो तारों की आरजू की है। धूली कण जब मिले, जमीन की चीजें जब मिल गई तो फिर तारों की अपेक्षा की है, तारों के पाने की कामना की है। मिले जो जर्रे तो तारों की आरजू की है। सितारे पाए तो फिर महताब मांगा चंद्रमा की ख्वाहिश की है। मिला जो माह तो जागी है आरजुए सहर। चंद्रमा जब मिल गया, अब रात खत्म होने को है तो अब सुबह होने की उत्कंठा पैदा है कि प्रातः काल आ जाए। आरजुए सहर, सुबह होने की कामना की है। ए लॉन्गिंग, ए डिजायर टू सी द मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग राइजिंग सन। मिला जो माह तो जागी है आरजुए सहर। सहर मिली, सुबह जब मिली तो नया आफताब मांगा है, नया सूरज। शहर मिली तो नया आफताब मांगा है, नया सूरज। और कल हमने बताया था द सन राइजेस एवरी डे बट इट्स ए डिफरेंट सन ऑल टुगेदर। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सूरज कल वाली चीजों का मुशाहिदा करे। हर दिन का सूरज, आज जैसे 25 सितंबर का सूरज जो निकला है वो नई चीजों का मुशाहिदा कर रहा था। कल मोहम्मद मुजम्मिल वाज स्पीकिंग on the ecosystem of higher education. आज मोहम्मद मुजम्मिल is speaking on goals of higher education. आज आपके मन में नए हौसला है, नई उम्मीदें। कल की बात पीछे छूट गई। आज का जो सूरज है वो आज के हमारे इस काम का जायजा ले रहा है, इसका मुशाहिदा कर रहा है, ये विटनेस कर रहा है। आज नए फूल खिले हैं जो सूरज देखना, आज नए बच्चे पैदा हुए हैं जो ये सूरज देखेगा, आज नए काम होंगे जो ये सूरज देखेगा, पूरा नया संसार ये सूरज आज देखेगा। इसलिए कहा गया कि शहर मिली तो नया आफताब मांगा है, नया सूरज। सूरज इतना पावरफुल है, इतना शक्तिमान है, शक्ति का पुंज है। इसलिए बहुत सी संस्कृतियों में इसको देवता के समान, इसको देवी के रूप में पूजित रहा है। चंद्रमा, सूर्य देवता के रूप में पूजी, इसका पूजा किया जाता है, इसलिए कि बहुत बहुत शक्तिमान है, इसलिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। मिली जो शहर तो नया आफताब मांगा है। एक इनकलाब मुसलसल है, रिवोल्यूशन, क्रांति, एक इनकलाब मुसलसल है तालीम का सफर। मुबारकबाद आपको, आप तालीम के सफर में आ गए। शिक्षा की यात्रा में आ गए हैं। आपने बहुत अच्छा किया, आप कहीं दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे की प्रोफेशन में नहीं गए, नहीं तो इतना मजा नहीं आता आपको मौका है कि आप ये चीज अपने बच्चों को बताएं, विद्यार्थियों को बताएं, वो अपने बच्चों को बताएं, और ये जनरेशन टू जनरेशन ये बात चलती रहे कि ये जो शिक्षा का जो सफर है ये एक नया एक इनकलाब है मुसलसल। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, वो विश्वविद्यालय जिनका गुणगान पूरी दुनिया में था, उन्होंने जो ज्ञान की पताका फहराई थी, ऐसी पताका देश में फहरना चाहिए कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड का नाम नहीं लिया जाए जो हमारे विश्वविद्यालय हैं। अभी बोला जाता है कि टॉप 100 में नहीं है, टॉप 200 में नहीं। वाई 100 and 200? वाई नॉट ऑन द टॉप? तो आप कर सकते हैं। तो ये जो आप कर सकते हैं वाली चीज है, इसका हायर एजुकेशन के गोल में इसको शामिल कर लिया गया है, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू नो न्यू थिंग्स, रिसर्च, इनोवेशन, इनोवेटिव थिंकिंग, एंड सर्च फॉर विजडम, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ विजडम। अल्टीमेट ट्रूथ, ज्ञान, अल्टीमेट सच्चाई, वही धर्म है। सारे धर्मों का क्या काम है? टू सर्च फॉर अल्टीमेट ट्रूथ। बहुत अहम। तो जो गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन है ये इतने अहम हैं कि ये पूरे जो मानव जीवन है उसको संवारने का काम करते हैं। मानव जीवन में ललित कलाओं के प्रति अनुराग पैदा करते हैं, जीवन के प्रति अनुराग पैदा करते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण की हुई है तो ललित कलाओं में आपका अनुराग होगा, जीवन के प्रति आपका अनुराग होगा। जो खूबसूरती है, सुंदरता है, उसके प्रति आपका अनुराग होगा, उसके प्रति आपके मन में एक लगाव पैदा होगी, मोहब्बत होगी। और ये जो प्रेम, मोहब्बत, लगाव है ये एक ऐसे माहौल को जन्म देता है जिसमें जीवन, जिसका जो आनंद है वो वही महसूस करते हैं जो वहां पे रहते हैं। अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर, अभी हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन का लेवल है, इनरोलमेंट रेशियो कल हम बताया था 26% है। इसका मतलब 26% आपकी उम्र में
आपको मतलब 18 से 23 साल की उम्र में जो हमारे लड़के लड़कियां हैं उनका सिर्फ 26% कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। आप सोचिए जब ये 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, पूरी एजुकेटेड सोसाइटी हो जाएगी, नॉलेज सोसाइटी हो जाएगी, तो उसका आनंद ही अलग होगा। एवरीबॉडी इज बर्स्टिंग विद नॉलेज, न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग। हमने इंग्लैंड में देखा कि वो जमाने में 94-95 में जब वो शॉपिंग लिस्ट बनाते थे लोग, और जब शॉपिंग मॉल में जाएं, बाजार में जाएं सामान खरीदने के लिए, तो उसमें उस जमाने में इंटरनेट नहीं चला था, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, स्क्रीन पे कुछ नहीं था, तो आप किताब और मैगजीन खरीदी जाती थी पढ़ने के लिए। आप समझ पा रहे हैं ना, अखबार, किताब, मैगजीन, बस ये था, इंटरनेट नहीं था, रेडियो था, टेलीविजन आ गया था, रेयर था। तो ये जब नेट नहीं था, आप सोचिए ना, तो पढ़ने के लिए आप या अखबार पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, या मैगजीन पढ़ के, या किताब पढ़ के। तो वहाँ का जो कपल था, या कोई औरत या मर्द जो शॉपिंग करने के लिए जाता, तो जहाँ पर वो ग्रोसरी खरीदता, ब्रेड खरीदता और दूध खरीदता और बटर और दूसरी चीजें खाने के लिए अनाज खरीदता, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदता, वहाँ 1-2 किताबों के नाम भी उसके लिस्ट में लगे होते थे। हमको देख के बहुत अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि ये नॉलेज सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी। और फिर वो ऑक्सफोर्ड शहर में हम रह रहे थे, जो विच वाज द सेंटर ऑफ लंदन में होते तो शायद ये बात नहीं होती। बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन है, शायद ये बात नहीं होती। ऑक्सफोर्ड इज ए स्मॉल टाउन, इसलिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में लोग जाकर के रहना पसंद करते हैं। तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाए, तो आपका जो आनंद होगा, जो लेवल, आप जैसे कोई बात कहेंगे लोग उसको समझ जाएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन है और जो स्किल है और जो बड़े गोल्स हैं जिनको अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, दे आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन। आप अपने विषय से इनको जोड़ करके जब देखेंगे, तब फिर इनको विकास के साथ में जोड़ दिया जाएगा, तब इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, तब इनको सस्टेनेबल गोल्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। आइए 10-15 मिनट में इसके ऊपर में बात करते हैं आपसे। आई थिंक यू आर विद मी। अभी तक का बात आप समझ गए हैं जो हमने आपको बताया, गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया में हर आदमी तो यूनिवर्सिटी में नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं देख रही है, उसको तो कृषि का विकास भी चाहिए, उसको उद्योग का विकास भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, उसको बहुत कुछ चाहिए, और पूरे समाज को बहुत कुछ चाहिए। अब आइए हम आपको उस तरफ ले चल रहे हैं कि जो विकास के जो गोल्स हैं, सोसाइटी के जो उद्देश्य हैं, समाज के जो उद्देश्य हैं, how higher education is related, how it can help achieve those big goals of the society, big goals of the university, big goals of the government, big goals of the countries of the world. जैसे 90 में, बहुत पहले ना जाए वहां, बहुत पहले जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा पहले से चलते हैं, बहुत पहले से नहीं जाएंगे। जो 17वीं सदी थी, 17th century is the beginning of agricultural revolution. 18th century जब आया, that is the beginning of the industrial revolution. 1776 beginning of the 1760s का देना चाहिए, थोड़ा और पहले 1760 का जो पीरियड है, 1760 एस लगा दीजिए छोटा। 1760 का जो दशक है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, उसके साथ ही टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन पर जोर बढ़ गया, इंडस्ट्रियल एजुकेशन के ऊपर में जोर बढ़ा। 100 साल तक ग्रेट ब्रिटेन पूरी दुनिया का वर्कशॉप बना रहा। हायर एजुकेशन जैसे वहीं की यूनिवर्सिटीज तक केंद्रित थी। 100 साल के बाद में 1860 का जब दशक आया, 1860, then 4 more countries joined the race of development. USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, 4 देश। 1860, 1860 के दशक में ये 4 देश आ गए, USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान। किसके मुकाबले में? इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले में ये 4 आ गए। अब इन चारों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, इन चारों में विकास शुरू हो गया, इन चारों में इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया, इन चारों में पावर हाउसेस।
हाँ, और 100 साल तक का जो उसका एक मोनोपोली था ना, वो मोनोपोली टूटने लगा। 100 साल और गुजरने दीजिए, जल्दी जल्दी से चलते हैं, 100 साल और गुजरने दीजिए, 1960 आ गया, 1960s, 1960। तमाम सारे डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ये जो तमाम सारे कंट्रीज जिनको आजादी मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1960s में आकर के, अब देखिए 1760s इंग्लैंड, 1860s यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, 1960s इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब आए। और कैटलिस्ट फैक्टर क्या था इन कंट्रीज का डेवलपमेंट का? अब अगर ये कंट्रीज वही कोयले वाली भट्टी से काम करते कि चलो लोहा गलाने का काम जो 1760 के दशक में इंग्लैंड ने किया था, वही काम करके हम भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाए, तो फिर काम हो चुका, फिर तो कुछ नहीं हो सकता था। 1960s में आकर के एजुकेशन रिवॉल्यूशन हुआ, कोठारी कमीशन बना दिया गया, कार्नेगी कमीशन बना दिया गया, तमाम सारे देशों में इस बात का अध्ययन किया गया that what it is which promotes development in countries of the world. All research is proved without doubt that it is education which is the most catalyst factor of development of any society, any country. 60 का दशक, 1960s। क्या 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 रिसर्च आया? पूरी दुनिया में रिसर्चेस ने यह साबित किया कि विकास को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे खास जो रोल है, इट इज प्लेड बाय एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो कर ही नहीं पाएगा जब तक आपके पास में एजुकेशन नहीं रहेगा, जब तक आप में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा। आज की तारीख में बात करिए कि विच इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट, देन द आंसर इज एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इतनी बड़ी फोर्स है आज के समय में। तो वहां से शुरू हो गया। 90 में जब पहुंचे, 60 के दशक में कोठारी कमीशन आया। पहला सेंटेंस हमने कल आपको बोला था, आपने कुछ लोगों को याद होगा जरूर, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। कितना बड़ा सलूट है आप तमाम सारे टीचर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त में। कितना बड़ा सलूट है, आपको प्रणाम किया जा रहा है दैट यू आर द डेस्टिनी मेकर्स। इससे बड़ा सलूट और क्या हो सकता है? इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या हो सकती है? दैट यू आर द डेस्टिनी मेकर्स। आप भाग्य का निर्माण करने वाले हैं, भाग्य निर्माता का काम आप कर रहे हैं। आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तालीम दे रहे हैं। कहावत है, मशहूर कहावत है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए ईयर ग्रो क्रॉप्स। एक साल की योजना अगर आप बना रहे हैं तो गेहूं चावल पैदा करिए, काम चल जाएगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 25 ईयर्स प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाइए जो 25 साल तक फल देते रहेंगे। इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100 ईयर्स एंड मोर देन स्टार्ट टीचिंग। 100 साल की योजना बना रहे हैं आप, 100 साल के आगे सोच रहे हैं आप, तो फिर आपके फसल उगाने से काम नहीं चलेगा, आपका पेड़ से भी काम नहीं चलेगा। फिर आप शिक्षा देना शुरू करिए, हर अगली जनरेशन को पता रहे भोजन कैसे पैदा किया जाएगा। दैट इज द कैटलिस्ट, इसी को कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। तालीम देना शुरू कीजिए, एजुकेट करना शुरू कीजिए, ताकि वो खुद अर्न करने, वो खुद प्रोड्यूसर बन जाए, खुद उत्पादक बन जाए, खुद सस्टेनर बन जाए। ये बड़ी पावर है एजुकेशन के अंदर में। इफ ए पर्सन इज हंग्री एंड यू गिव हिम फिश टू ईट, his one day's problem of food will be solved. But if you give him the art of fishing, the education of fishing, the technology of fishing, lifelong problem will be solved. इतना अहम है शिक्षक की भूमिका। तो ये जो हम आपको बता रहे थे कि जब 90 आया तो 2 बड़े कैंपेन चले। वो बड़े कैंपेन क्या थे? एजुकेशन फॉर ऑल, आपने जरूर सुना होगा, एजुकेशन फॉर ऑल एंड हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य। 90 की बात है ये। अल्मा-अता डिक्लेरेशन जो सेंट्रल एशिया में है, अल्माटी डिक्लेरेशन, और जोमेटिन है इंडोनेशिया में, वहां पर एजुकेशन फॉर ऑल के डिक्लेरेशन हो 90 में। और उसमें यह कहा गया बाय द ईयर 2000। 90 और 99 तक ऐसा लग रहा था कि 2000 लिखने में भी बहुत समय है, 2000 आने में भी बहुत समय है, एकदम से आ गया। टाइम बहुत जल्दी गुजरता है।
दोनों में ये कहा गया था एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, जोमेटिन डिक्लेरेशन, दोनों में कहा गया था दैट इट शुड बी अचीव्ड बाय द ईयर 2000 एजुकेशन फॉर ऑल, बाय द ईयर 2000 हेल्थ फॉर ऑल। 2000 आ गया, बट द वर्ल्ड हैड नॉट अचीव्ड द गोल्स, मेनी कंट्रीज हैड नॉट अचीव्ड द गोल, हेल्थ फॉर ऑल नहीं हो पाया था, एजुकेशन फॉर ऑल नहीं हो पाया था। तो 2000 में पहुंच करके कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे गैदर्ड इन डकार, जो सेनेगल का राजधानी, सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में एक मुल्क है, कंट्री है, एंड डकार इज द कैपिटल, और वो अटलांटिक कोस्ट के ऊपर में, अटलांटिक समुद्र पर है। अफ्रीका की कॉलोनी रहा, अफ्रीकन फ्रेंच कॉलोनी रहा है, अफ्रीका का देश है, फ्रेंच कॉलोनी रहा है, और फ्रेंच भाषा बोली, फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत है। जैसे इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत है, ऐसे सेनेगल वाज ए फ्रेंच कॉलोनी, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत है। एयर फ्रांस पेरिस से डकार का फ्लाइट में जाता है, अगर आप डकार कभी जाएं तो एयर फ्रांस में जाएंगे, यहाँ से पेरिस, पेरिस से डकार, एयर फ्रांस जाता है। जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ब्रिटिश एयरवेज जाता है, उनको अच्छा लगता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में फ्लाई करने में, तो फ्रेंच एयरवेज अपने जहां जहां उनका फ्रेंच गयाना है तो फ्रेंच एयरवेज जाएगा वहां पर, एयर फ्रांस जाएगा वहां पर। तो डकार में दुनिया के दो देश इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि 2000 आ गया, अब चलिए अगले 15 साल के लिए विकास का उद्देश्य बनाते हैं। अब उस विकास के उद्देश्य में देखिए 8 उद्देश्य तय किए गए, आपने सुना जरूर होगा, हम जस्ट ए रिमाइंडर ऑफ दैट, अब समय भी नहीं है ज्यादा। वो 8 गोल्स तय किए गए, 5 ये और 3 8 गोल्स, उनको बोला गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब भाई देखिए, आप गौर करें, व्हाई आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी, हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, the system of higher education, how students in higher education can help achieve these goals। उनको आप सुन लीजिए, आप सिर्फ सुन लीजिए और अंदाजा करिए, रिलेट करने का कोशिश करिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज योर रोल, कितना बड़ा उद्देश्य आप प्राप्त करेंगे अगर उन उद्देश्यों को हासिल करने में आप थोड़ी मदद कर सके। उनको बोला गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आपके गोल्स तो पता लग गए कि हायर एजुकेशन के क्या गोल्स है। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से गरीबी को खत्म कर देना, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, नितांत गरीबी और भुखमरी को खत्म कर देना। अब हायर एजुकेशन की बड़ी भूमिका इसमें, एजुकेशन की बड़ी भूमिका है निर्धनता को खत्म करना। पूरा लेक्चर, 2-3 लेक्चर इस पे हो सकते हैं, हाउ एजुकेशन कैन हेल्प, हायर एजुकेशन कैन हेल्प remove poverty, remove hunger, remove abject poverty, asset creation, income generation में कैसे हेल्प कर सकता है। नंबर 2, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, अगर आप हायर एजुकेशन नहीं पहुंचोगे तो फिर वहां के लिए टीचर नहीं मिलेंगे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीएड नहीं करेंगे तो वहां के टीचर नहीं मिलेंगे। तो you are the teachers, higher education produces the teachers who teach in primary education। बीएड यहाँ से करेंगे ना, बीएड कॉलेज हैं लार्ज नंबर। और अब तो ये प्रमाणित हो चुकी है, ये बात साबित हो चुकी है कि दैट विमेन टीचर्स इन प्राइमरी एजुकेशन दे इंश्योर लार्जर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, लार्जर अटेंडेंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड, लार्जर अटेंडेंस ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में 31 या 33 विमेन यूनिवर्सिटीज खोल दी गई। पहले हम लोग SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई महिला विश्वविद्यालय के नाम सुनते थे, 33, अकेले राजस्थान में 3 है। हर तमाम सारे राज्यों में एक एक बन गए, कुछ राज्यों में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है, बल्कि बहुत सारे राज्यों में विमेन यूनिवर्सिटीज बन गए हैं, महिला विश्वविद्यालय, लेडी टीचर्स निकल रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करके लड़कियां निकल रही हैं। प्राइमरी एजुकेशन का सपोर्ट है ये। Primary, you cannot think of teaching faculty in primary education unless you produce good teachers in the higher education system, B.Ed डिग्री लेकर के वो जाए वहां पर पढ़ाएं। Eradicate extreme poverty and hunger from the world, achieve universal primary education, promote gender equality responsibly और intelligently। अगर आपको काम करना है तो जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन
एक ऐसी जो कैथरीन फॉस्ट ने कहा कि वी हायर एजुकेशन वांट्स टू डेवलप ए सिटीजनरी व्हिच बिहेव्स रिस्पॉन्सिबली, व्हिच बिहेव्स इंटेलिजेंटली, तो वो सिटीजनरी पैदा करना। The first woman president of Harvard University, Catherine Faust, F-A-U-S-T. किताब है पूरी, Goals of Higher Education. Then promote gender equality. Gender equality बहुत अहम है। एस्टर बोसरूप का नाम लेना बहुत जरूरी है। जब उन्होंने 1970 में 71 में अपनी किताब लिखी वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरे दुनिया में एक रिवोल्यूशन पैदा हो गया। उस किताब में उन्होंने लिखा दैट women are backward in economy and society because they are a late starter in education। क्या बात कही, women जो पिछड़ापन है, एक सेंटेंस में बात कही। देखिए, एक सेंटेंस में कम शब्दों में अगर आप बात करेंगे बहुत फोर्सफुल बात होगी, बहुत फोर्सफुल बात होगी, और अगर ज्यादा विस्तार करते जाएंगे तो उसका जो फोर्स है ना वो कम होता जाएगा। एक सेंटेंस में बात बताया उन्होंने कि महिलाओं के पिछड़ेपन का, महिलाओं के आर्थिक पिछड़ेपन का, सामाजिक पिछड़ेपन का पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि महिलाओं ने शिक्षा के जगत में देर से कदम रखा। दे आर ए लेट स्टार्टर इन एजुकेशन। 1928 तक, until 1928, Oxford University was not allowing degrees to women students. It was not giving degrees to women students. Cambridge University until 1948 was not giving degrees to women. लड़कियां क्लास में बैठ के लेक्चर सुन सकती थी, लेकिन इम्तिहान they were not allowed to write examination and receive degrees. वो डबलिन जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन जो आयरलैंड में है, वो बोट में बैठ करके जाती थी, वहां से वो दिखाती थी, लिख करके दिया जाता था कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड में लेक्चर अटेंड किया है, तो डबलिन यूनिवर्सिटी उस बेसिस पर उनको डिग्री दे देती थी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में ये कानून नहीं था लड़कियों को डिग्री दिया जाए। उनको लेडीज ऑफ द स्टीम बोट बोला जाता था, लेडीज ऑफ द स्टीम बोट, क्योंकि स्टीमर में बैठ के वो पार करके समुद्र आयरिश सी को पार करके और डबलिन जाती थी, इंग्लैंड में मैनचेस्टर के पास से डबलिन जाती थी, और फिर उनको वहां पर वो डिग्री मिलते थे। जेंडर इक्वालिटी, हिंदुस्तान के जो हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, और बॉम्बे का तो और कलकत्ता का और मद्रास का, ये तीनों 1857 के हैं, 1857। दे स्टार्टेड देयर कैरियर इन 1857। 1857 में ये तीनों बने, प्रेसिडेंसी टाउन्स इनको बोलते थे, बॉम्बे, चेन्नई जो मद्रास पहले, और कोलकाता। पहली महिला ने मद्रास यूनिवर्सिटी में 1872 में कदम रखा, तो कितना पहले हो गया भारत। ताली बजाना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत पहले, हमारे यहाँ लड़कियों ने यूनिवर्सिटीज में कदम रखा है, 1872। हालांकि 57 में बन गई थी वो यूनिवर्सिटी, और फिर अगले ही साल 1873 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लड़की ने एडमिशन लिया, तो वहां उतना पुराना। और ऑक्सफोर्ड ने 1928 तक डिग्री नहीं दिया, कैम्ब्रिज ने 1948 तक डिग्री नहीं दिया, तो डिस्क्रिमिनेशन था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ने तय किया जेंडर इक्वालिटी, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो प्रसव के समय, डिलीवरी के समय जो माँ की मौत हो जाती, बच्चों की मौत हो जाती, इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो उसको रोका जाए। और उसको रोकने के साथ साथ कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर किलर डिजीजेस, छठा जो गोल था वो, तो पहला हो गया इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर एंड हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। फिर उसके बाद हो गया रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, फिर उसके बाद हो गया इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, पांचवा, और फिर छठा आ गया कम्बैट, फाइट करिए, कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर किलर डिजीजेस। कोरोना उस वक्त था नहीं, सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है, कम्बैट कोरोना, कम्बैट कोविड-19। तो ये जो किलर डिजीजेस हैं, इनसे कैसे अवेयरनेस पैदा करेंगे? हाँ, जैसे ही कोरोना मर्ज फैला तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी लग गई
और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लग गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लग गया वैक्सीन बनाने में, हमारे मेडिकल साइंटिस्ट लग गए वैक्सीन बनाने में। उच्च शिक्षा ने कितना बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर किलर डिजीजेस। हमारे साइंटिस्ट लग गए, विश्वविद्यालय लग गए नई दवाओं का खोज करने में, इंजेक्शन का, वैक्सीन का खोज करने में लग गए, पूरा टीम लग गया। और ऑक्सफोर्ड लग गया, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी लग गया, दूसरे विश्वविद्यालय लग गए। भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालयों के मेडिकल फैकल्टीज लगी हुई हैं। कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर किलर डिजीजेस, ये जितने सारे डिजीज सब उसमें शामिल कर। लास्ट 2, 7 and 8 इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 7वां, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस ध्यान में रखिए। जब भी आप कोई नीति बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट दैट what will be the impact of this policy on environment and ecology, on natural resources. अगर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा तो फिर रीथिंक करिए, पुनर्विचार करिए अपनी नीति के ऊपर में। It should not exploit natural resources in such a way that lesser resources are left for the next generation. क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अगली जनरेशन के लिए वो उतना ही मात्रा में बने रहें, so that we not only have development for us, we also have development opportunities left for our future generation, for our children. We are not only happy to drink water, we should also leave potable water for our children. We should not only use vegetation ourselves, we should leave vegetation for the next generation. We should not pollute the air so that the next generation is not able to breathe. Sustainability, environmental sustainability. और 8वां है डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप। ऐसे हाथ मिलाइए, डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, हाथ मिलाइए। क्योंकि विकास एक देश का जिम्मेदारी नहीं है। एक देश का यूनिवर्सिटी बड़ा कमाल कर दे तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाए। हर यूनिवर्सिटी कमाल करने का काम करे, हर यूनिवर्सिटी अच्छे स्टूडेंट पैदा करे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पैदा करे, इंटेलिजेंट सिटीजन पैदा करे, मॉरली स्ट्रांग पीपल पैदा। हर यूनिवर्सिटी ऐसे लोग पैदा करें जो समाज के लिए इंटेलिजेंटली काम करें, रिस्पॉन्सिबली काम करें, ह्यूमनिज्म के लिए हों, टॉलरेंस के लिए हों, रीजन के लिए हों, एंड फॉर द परसूट ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में बना तो इसका डेडलाइन रखा गया 2015। अब 2015 आ गया। अब देखिए बिल्कुल लास्ट स्टेज, 2-4 मिनट 5 मिनट लेंगे बस, उसके बाद फिर आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि 2015 में, अब देखिए हायर एजुकेशन फिर लिंक करने की बात आएगी। 2015 में पूरी दुनिया के देश फिर एक बार जमा हुई, क्योंकि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का डेडलाइन आ गया, 2015 आ गया, और ये 8 जिनका हमने अभी जिक्र किया, और आप अपने आप रिलेट कर रहे थे कि कैसे हायर एजुकेशन इन 8 से जुड़ा हुआ है, एंड हाउ यूनिवर्सिटीज आर प्लेइंग देयर critical role in promoting and in achieving all these millennium development goals. These were to be achieved by the year 2015. 2015 did come, but then we were far away from achieving those goals. Then in 2015, countries of the world, they gathered, they assembled in New York, America. अब न्यूयॉर्क में इन लोगों ने अगले 15 वर्षों के लिए, 2030 के लिए, 2015 में 2030 के लिए, they developed sustainable development goal. Sustainable. SDGs उनको बोला गया, sustainable development goals. ये 17 हैं। वहां पे 8 थे, ये 17 हैं। ये आपके जहन में हो, हर टीचर को मालूम होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है कि आपके स्मार्टफोन में सब इस वक्त में है, आप फौरन उनको लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब रिलेट करना होगा ना, तो आपके जहन में होना चाहिए हाउ टू रिलेट इट, बिकॉज यू आर ए टीचर। यू कैन नॉट ओनली, आप गिनती गिना के काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू रिलेट इट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट, हाउ द यूनिवर्सिटी कैन कंट्रीब्यूट। तब इसमें भी पहला जो है वो पॉवर्टी रख दिया गया। पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, eradication of poverty in all forms and from every part of the country. Removal of poverty in all its forms and from every part of the country. Education is a very
very important factor to remove poverty across the globe. पूरी दुनिया में जहां जहां निर्धनता को खत्म किया गया, गरीबी को खत्म किया गया। अरे अमेरिका तो बहुत ही गरीब था, हंटिंग का काम हो रहा था वहां पर। अमेरिका की खोज कब हुई आपको मालूम है? 1492 में जब कोलंबस वहां पहुंचा, दैट वाज 1492। और उसके 20-25 वर्षों तक वहां पर यूरोप के सेटलर्स, यूरोप के लोग सेल करके अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंचे। उसमें अमेरिका में जंगली जानवरों का शिकार करके पेट भरा जाता था। और जब 5-6 साल का एकदम से सूखा पड़ा वहां पर, और उसके बाद फिर जब उनको अनाज मिला, बारिश हुई और फसलें हुई, तो वो पंपकिन और टर्की, फिर वो थैंक्स गिविंग एक त्योहार मनाते हैं अमेरिका में। आज भी थैंक्स गिविंग, अमेरिकन थैंक्स गिविंग मशहूर है। पंपकिन एंड टर्की एक चिड़िया है जिसका वो शिकार करके उसका वो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। और पंपकिन ये जो कद्दू है इसका सब्जी। और अगले 20-25 साल तक जब वहां पे बसना, न्यू इंग्लैंड का इलाका जो यहाँ पे फिलाडेल्फिया, बोस्टन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इधर ईस्टर्न साइड का जो पूरा हिस्सा है, जो मेन हब है इस वक्त में, वहां जाकर यूरोप के लोग बसने लगे। और वो वेस्ट कोस्ट जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस है, वहां बहुत बाद में पहुंचे। वेस्ट कोस्ट प्रशांत महासागर के तट पे तो बहुत बाद में पहुंचे एक लोग। तो 20-25 साल और गुजार दीजिए और 1526 में इंडिया में मुगल एम्पायर का स्थापना होता है। 1526 में अमेरिका की शुरुआत होती है। इट वाज नोवेयर, नॉट इवन इन द वर्ल्ड मैप। और हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते थे 6ठे क्लास में, तो 2 ग्लोब बना होता था। एक में ये यूरोप और अफ्रीका और एशिया ये दिखता था, उसके नीचे लिखा होता था पुरानी दुनिया। और एक दूसरा गोला था, दूसरा ग्लोब, उसमें नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका दिखता था, उसके नीचे लिखा होता था नई दुनिया। व्हेन वी वेयर स्टूडेंट्स, अभी 60s के डिकेड में, 65-66 में, ऐसे 2 दुनिया दिखाया जाता था भूगोल का किताब में, ज्योग्राफी में। वन वाज ओल्ड वर्ल्ड, द अदर वाज न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड वही जिसको कोलंबस ने खोज के निकाला था। आज इतना तरक्की कर गया है, तो उसके पीछे जो चीजें हैं, जो अहमियत है, जो राज है उसका, उसमें जो एजुकेशन की जो भूमिका है वो सबसे अहम है। और उस वहां की गरीबी को हटाने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कृषि का भी रोल है, उद्योग का भी रोल है, सभी चीजों का रोल है, लेकिन एजुकेशन का सबसे अहम रोल है। In the quick upliftment of the American economy and society, the role of education, innovation, and they learned from the experience of other countries. ऐसा नहीं है, जापान ने 100 साल बाद जब विकास करना शुरू किया, 100 साल बाद जापान ने विकास करना शुरू किया, 1860 के दशक में आया इंग्लैंड के मुकाबले में। तब इंग्लैंड में, बाय दैट टाइम इंग्लैंड हैड दैट फाउंटेन पेन, जिसमें इंक भर करके आगे निब वाला हिस्सा था, उसको बंद करके लिखते थे, पीछे इंक भरा होता, लिक्विड इंक भरा होता था, फाउंटेन पेन। पार्कर बहुत मशहूर, आज भी पार्कर पेन जेब में अगर है तो बड़ा अच्छा लगता है, दैट आई एम हैविंग ए पार्कर पेन। कुरान में जिस चीज का सबसे पहले जिक्र किया गया है वो कलम है। हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये कलम से हम लोग जो है अपना सारा काम करते हैं। तो ऐसे जब आप इसको, यहाँ पे जो निब होता था, अब तो ये रिफिल वगैरह आ गया, जॉटर रिफिल, ऐसा सब, तो वो हमें इंग्लैंड में बन चुका था। तो जापान ने उसको फिर से इन्वेंशन करने का काम नहीं किया, फिर से डिस्कवरी करने का, इन्वेंशन करने का काम नहीं किया, एमुलेट करने का काम किया जापान, नकल करने का काम किया जापान ने कि देख लो कैसे बॉडी है, ऐसा माउथ है, ऐसा कैप है, ऐसा बना लीजिए, ऐसा लिब है, और स्याही भर दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। एमुलेट किया उन्होंने, एमुलेट करके फौरन इंग्लैंड के बराबर आ गए और फिर इनोवेट किया। तो 1960 जब आया तो पेन का टेक्नोलॉजी में परहैप्स जापान इज अहेड ऑफ यूके। तो यही सुविधा एजुकेशन और टेक्नोलॉजी देती है कि आप अगर एमुलेट कर लें तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर में। जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप कॉपी कर लें पहले, एंड देन यू इम्प्रूव, इनोवेट करिए, इम्प्रूव करिए। नवाचार, बहुत अभी कितने सारी स्कीम सरकार ने चले हैं जिसमें नवाचार शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका यही मतलब इनोवेशन, इनोवेट करिए। अब जैसे ये पेन है, पहले क्या था, इसमें लिक्विड भरा होता था और कभी कभी ये लीक कर हम लोग जब नए नए टीचर थे, लीक कर पूरा भीग जाता था, ये शर्ट खराब हो जाती थी और पक्का इंक होता था, छूटता नहीं था। अब इसमें ऐसा रिफिल आ गया तो वो लीक नहीं करता है। अब आप इसको आराम से, पहले हवाई जहाज में बैठ के सफर करिए, वो लीक कर जाता था। अब ये सॉलिड आ गया, जेल आ गया, थिक जेल आ गया, वो लीक नहीं कर रहा।
तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुए, असल में बात से बात निकलती जाती है, और आप जब टीचर्स के साथ में बात कर रहे हो तो फिर और उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 देखिए, जल्दी से इनको हम बता देते हैं, आप रिलेट करिएगा, अपने आप इनको रिलेट करिएगा, मजा आएगा आपको कि हाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर 17 in number, how your college, your university, your subject can help in achieving sustainable goals which were set in 2015 and which are to be achieved by the year 2030. अब इसमें पहला क्या है, पॉवर्टी है, फिर दूसरा क्या है, हंगर है, एक्सट्रीम हंगर, इसको खत्म करना है, भूखमरी। फिर क्या है, हेल्थ है, गुड क्वालिटी हेल्थ, सभी को मिले ये हॉस्पिटल। फिर क्या है, एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, चौथा क्वालिटी एजुकेशन। फिर उसके बाद में क्या है, जेंडर इक्वालिटी, फिर आ गया यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी। फिर आ गया वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, चीप एंड एफोर्डेबल एंड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, क्लीन एंड एफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। फिर आ गया ग्रोथ, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिर आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। फिर आ गई, अगर ये होगा तो इनइक्वालिटीज क्रिएट होंगी, इन हाउ टू इरेडिकेट एंड रिमूव दोज इनइक्वालिटीज। फिर आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, शहरों का डेवलपमेंट कैसे सस्टेनेबल करें, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। फिर आ गया क्लाइमेट एक्शन, 3C आ रहा, देखिए, सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन। फिर लाइफ बिलो वाटर कैसे सस्टेन करें, मछलियां हैं समुद्र के नीचे हैं, सस्टेनेबल तरीके से मछली का इंडस्ट्री किया जाए, मछली पकड़ने का काम। ऐसा ना हो कि हम ऐसे सीजन में फिशिंग करने का काम करें कि मछली का तादाद घट जाए, मछली का क्वांटिटी घट जाए। मेरीन जितना प्रोडक्ट है, मेरीन लाइफ, समुद्र के नीचे का जो जीवन है उसको सुरक्षित रखना, ऑगमेंट करना। लाइफ ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर जो जीवन है, वेजिटेशन है। कम शब्दों का प्रयोग करें, फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन लाइफ एंड एनिमल लाइफ, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे ऑगमेंट करें। और फिर आखिर के दो जो है वो पार्टनरशिप की बात है, उसमें फिर पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड, ताकि पूरी दुनिया शांतिपूर्वक रह सके, सम्मान के साथ में रह सके। ये जिनका हमने नाम लिया, ये 17 है कुल मिलाकर के, आप देखेंगे तो 17 है ये। इसमें सभी में जो उच्च शिक्षा है हमारी, इसकी बड़ी भूमिका है। सबसे बड़ी भूमिका क्या है मालूम है, एक सेंटेंस में, सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट दे आर अवेयर ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स। हफ्ते में 1-2 बार पूछते रहिए, आपका कोई भी विषय आप पढ़ाइए, हफ्ते में 1-2 बार जरूर पूछिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 5वां गोल कौन सा है, 6ठा गोल कौन सा, आपके विषय से जुड़ा हुआ जो है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। दूसरे टीचर दूसरों के बारे में विस्तार से एक सेंसिटाइजेशन पैदा होगा। किसी चीज के बारे में काम करने के लिए जरूरी है वो चीज पहले विचार में आना चाहिए। व्हेन इट कम्स इन योर माइंड देन ओनली यू विल वर्क फॉर इट। तो ये उच्च शिक्षा का बड़ा रोल है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट universities stand for humanism, for tolerance, for reason, for adventure of ideas, for producing citizens who are behaving intelligently, who are behaving responsibly, who are for the benefit of their own, to their own full satisfaction, and for the usefulness of the entire society. They are busy in the pursuit of wisdom, and they are busy in the pursuit of the ultimate truth. तो ये बड़े नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बने हैं, एंड you are very fortunate. I congratulate you with all my heart. You are so fortunate that you have joined as young lecturer, as young assistant professor. Remember, you have joined as a young student. ये जरूर याद रखिएगा। You are a young student. आप पढ़ते रहिए, और जब पढ़ेंगे तो माइंड रिएक्ट करेगा, आपका मन करेगा किसी से ये बात शेयर करें,
बहुत अच्छा है, आपके पास स्टूडेंट हैं, आप उनसे शेयर करें, आप उनको बताएं, उनको मोटिवेट करें, वो और पढ़ें और चीजों के बारे में जाएं और चीजों के ज्ञान का जो सीमा रेखा है उसको आगे बढ़ाएं. दे टेक द फ्रंटियर्स of education ahead, extend the frontiers of it. बहुत बड़ी बात है, extending the frontiers of education. हमारे अकेले एक का जिम्मेदारी नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करिए, क्योंकि उनका जो मेंटल फैकल्टी है उसमें एक से एक साइंटिस्ट और हुनरमंद बच्चे आते हैं जो बाद में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंचते हैं. उनको ट्रेन करने की जरूरत है, so that they go and serve themselves, their parents, their families and their society. So it was very nice speaking to all of you. Thank you very much, and have a very nice time. And now is the time we can take up, Mazhar Zaidi sir, we can take up 3-4 quick questions, yes, if there are any. Please. Yes. I have. Please. May I proceed, sir? Sir, first of all, Devraji, please go ahead. Everybody else mute. Excellent presentation, sir. एकदम motivated हो गए, sir. Such a brilliant presentation. Thank you. मेरा simplest है, sir. Thank you. मेरा नमस्कार. Sir, मेरा 2 क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन है. एक तो है जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम शुरू से देखा जाए तो मैं बंगाल से हूँ, बंगाल का एक बहुत अहम रोल रहा था, पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी जिसका कंट्रोवर्शियल है, रेनेसां कहा जाता है, नवजागरण हो रहा है. उस टाइम में बंगाल में जैसे नारी शिक्षा के बारे में कहे, वुमेन एजुकेशन के बारे में, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल. एंड due to his initiation, the colonial government had taken such a decision to establish and to मतलब education system में women को promote कैसे किया जाए इसको चाहता. Subsequently, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920s का प्रोडक्ट है और सेम टाइम